السلام علیکم۔ علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوٹیجی میں لٹیرے بے لگام 2 نوجوان تاوان کے لیے اغوا کر لیے گئے۔ ورثا کا کہنا ہے ملزمان نے رہائی کے لیے 60 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ ورثا کا پولیس تھانے کے سامنے احتجاج، مغوی بازیاب کروانے کا مطالبہ۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے دوست علی لاشاری۔ جی دوست علی لاشاری، بتائیے گا کہ مغوی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے؟ جی بالکل، یہ کوٹیجی کا علاقہ ہے ٹالپور وڈا جو کہ کومب تھانہ کی حدود میں آتا ہے، جہاں سے 2 محنت کش نوجوان مبینہ طور پر جو ہے وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آج نوجوان کی بازیابی کے لیے ان کے ورثا کومب تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نوجوان انور اور راجہ سہاگ جو ہے 5 دن قبل گھر سے مزدوری کے لیے نکلے تھے، پھر واپس گھر نہیں آئے۔ 5 دن بعد آج ہمارے ہی نوجوان کے موبائل فون سے کال کر کے اغوا کاروں نے ہم سے تاوان میں 60 لاکھ روپے مانگے، اور اغوا کاروں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر 60 لاکھ روپے نہیں دیے تو نوجوانوں کو قتل کر کے لاش گھر بھیج دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنی بڑی رقم جو ہے کہاں سے لائیں، خدا را نوجوانوں کو بازیاب کروا کر جو ہے وہ بے چینی ختم کی جائے۔ جہاں سے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں نوجوان جو ہے نسوانی آواز کی دھوکے میں آ کر جو شادی کی لالچ میں اغوا ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جلد مغویوں کو بازیاب کروایا جائے گا، لیکن یہ کافی عرصہ سے شیرپور ضلع بھر میں جو امن امان کی صورتحال جو ہے بالکل خراب ہو گئی ہے۔ قتل، زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے کیسوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر پولیس افسران کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں پولیس عوام کی جان مال کی محافظ ہے، مگر ایسا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ جی بہت شکریہ دوست علی لاشاری، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کوٹیجی میں لٹیرے بے لگام ہو چکے ہیں، 2 نوجوان تاوان کے لیے اغوا کر لیے گئے ہیں۔ ورثا کا کہنا ہے ملزمان نے رہائی کے لیے 60 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ ورثا کا پولیس تھانے کے سامنے احتجاج۔ ادھر میرپور ماتھیلو کے قریب محمد پور کی مین روڈ کی کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قادر جٹ سے۔ جی قادر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت گھوٹکی کے نوائی علاقے محمد پور روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں پر 15 سالوں سے روڈ کی حالت ناقص ہو چکی ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ روڈ سر 14-15 سال ہو گئے ایسے پڑی ہوئی ہے، کوئی سے ایشو نہیں۔ لوکل سے ایم پی ایز آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ 14 سالوں سے یہ روڈ ایسے بنی ہوئی ہے۔ یہی گزارش ہے عمران خان وزیر اعظم سے کہ روڈ ہمیں بڑی دشواری آنے جانے میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی مریض بھی آ جاتے ہیں، اس میں دشواری آ جاتی ہے، کیونکہ اس پہ اپیل ہے کہ یہ روڈ ہمیں بنا کے دیں۔ زیادہ عرصہ ہو گیا یہ روڈ نہیں بنا، میری ایج 20 سال ہو گیا، میں نے تو کبھی بنتے ہوئے دیکھا نہیں اسے، اور بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ آنے جانے میں بہت دشواریاں ہیں، ڈیوٹی پر آنا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، صبح کو گھنٹہ لگ جاتا ہے محمد پور سے راڑکی پہنچنے میں، اور اتنے گاؤں، بڑے بڑے گاؤں ہیں جو ایک شہر سے ملانے کا صرف یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس کی روڈ کی اتنی حالت خراب ہے، اتنے سالوں سے کوئی مرمت کا کام نہیں ہوا۔ 2 سال ہو گئے یہاں پر پتھر پڑے ہیں تو وہ کام وہیں پر پڑا ہے، کچھ نہیں کر رہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ کچھ اس کو دیکھا جائے۔ یہ ٹھیکیدار پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، پتھر بچھا کے واپس ہی نہیں آئے۔ یہ پہلے تو روڈ خراب تھا، پتھر پڑے ہونے کی وجہ سے اور زیادہ تکلیفیں ہیں۔ ہم 10-12 سال سے اسکول پڑھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کی وجہ سے ہم بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں صبح 8 بجے اسکول پہنچنا ہوتا ہے، اس روڈ کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو سال ہو گیا یہ پتھر یہیں پر پہ ہیں، یہ روڈ نہیں بن رہا۔ جیسے تنگ ہوتے ہیں یہاں کے لوگ، شہری شہر جانے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بنا دیں یا تو اس کو یہ پٹ کر کچی بنا دیں، وہ ہی صحیح ہوگا۔ جی آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، انہوں کو بھی یہی کہنا تھا کہ 15 سالوں سے یہ روڈ کی حالت ناخاص ہو چکی ہے۔ ایم پی اے ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد گم ہو جاتے ہیں، اور اسکول کے بچوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ ہم صبح کو 8 بجے اسکول جاتے ہیں تو 8 بجے کے 9 بجے تک ہمیں گھنٹے اور لیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اعلیٰ حکومت سے اپیل کیا کہ ہم یہ روڈ بنوا کر۔ بہت شکریہ۔ ادھر ملک بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی آل پاکستان ایپکا کلرک ایسوسی ایشن چنیوٹ کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف احتجاج۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ناصر چودھری سے۔ ناصر چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ज़िला चिन्योट की जानिब से आज कलम छोड़ हड़ताल की गई है। इस वक्त हमारे साथ ज़िलाई सदर मोहम्मद अरशद घुम्मन मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या क्या मुतालबात हैं क्लर्क एसोसिएशन के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के हिसाब से जितनी भी महंगाई है, हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं। जुडिशली के 150% अलाउंस कल ही सेक्रेटरी फाइनेंस ने अनाउंस किया है और उन्होंने ले भी लिए हैं। हमारा गवर्नमेंट पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट से और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएँ और जुडिशली अलाउंस जिस तरह उनको 150% दिया हमें भी दिया जाए और महंगाई के हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। अगर तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज पूरे पाकिस्तान लेवल पर करेंगे, वज़ीर आला हाउस के सामने करेंगे, पार्लियामेंट के सामने करेंगे। जब तक हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी एहतजाज जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ज़िले सदर एपका चिन्योट मोहम्मद अरशद घुम्मन का कहना है कि जिस तरह जुडिशली के अलाउंस में इजाफा किया गया है उनको अलाउंस मिल भी चुके हैं, इसी तरह हमारा भी राइट बनता है कि हमें भी हक दिया जाए। अगर हमारा मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम पंजाब असम्बली के सामने और पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। जिस वक्त तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे उस वक्त शुक्रिया तक नासिर हमारे चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जहानिया के नवाही बस्ती में एक गरीब खातून का जहानिया के एक डॉक्टर ने पेट में रसोली का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन खराब हो गया। जख्म खराब होने पर खातून ने इलाज पर अपनी जमा पूंजी लगा दी, मगर फिर भी जख्म ठीक ना हुआ। हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बूटर इस वक्त वहां मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाही चक 115 दासर में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ज़ईफ औरत जिसका नाम नज़ीरा माई है भी मौजूद है। चंद माह कबल एक जहानिया के एक डॉक्टर ने इनका गुर्दे और रसोली का ऑपरेशन किया था और इन डॉक्टर की गफलत की वजह से इसका ऑपरेशन ख़राब हो चुका है और इन्होंने इलाज करवा कर इनकी सारी जमा पूंजी तक खर्च हो चुकी है। अब ये और इसके बच्चे फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे खराब हुआ है और ये इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगी। भाईजान ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन खराब हो गया, कहना है फिर अपना शुगर खराब हो करा शुगर नहीं चेक किया। शुगर तो बगैर जो ऑपरेशन खराब थी गया से दवाइयां करते जो अपने आई सारा कुछ कमाई करके खा बैठे हैं। गरीब आदमी है, नहीं है हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। मेहरबानी करो, इमदाद करो, हुकूमत तरफ भाई इमदाद कर दो। ये नज़ीरा माई का कहना है कि डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने से पहले इन्होंने शुगर का टेस्ट नहीं करवाया था और शुगर की वजह से इनका जो ऑपरेशन है मज़ीद ख़राब हो गया है और इलाज करवा कर इनकी जमा पूंजी तक खर्च हो चुकी है। इन्होंने हुकूमत से और मुखिया ज़रा से अपील किया कि इनकी मदद की जाए और इनकी इमदाद की जाए ताकि ये अपने बच्चों का 2 वक्त तक खाना मुखिया हजरात से मदद की अपील है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बूटर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर ओबाड़ों का मिठास से भरा गुड़ मुश्किल मराहल से गुजर कर तैयार किया जाता है। गन्ने से गुड़ बनाने के लिए आज भी रिवायती तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने से तैयार किया जाने वाला गुड़ शहरियों की मनपसंद सौगात है जो जायके में भी बेमिसाल है। मज़ीद जानते हैं ओबाड़ों से मलिक बहराम अली से। जी मलिक बहराम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गन्ने से गुड़ बनाने के आज भी उबाड़ों में काम जारी है। गन्ने से गुड़ बनाने के लिए आज भी रवायती तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी शुरू होते ही देही इलाकों की सौगात गुड़ की तैयारी उरूज पर होती है। इस हवाले से हमारे साथ गुड़ बनाने वाले कारीगर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि गुड़ की मराइल किस मराइल से गुजर कर बनाया जाता है। गन्ने को सबसे पहले काटा जाता है, ज़मीन से काटने के बाद रेड़े पे शिफ्ट किया जाता है वेलने पर। वेलने में पीड़ने के बाद उसकी रस निकाली जाती है। रस निकालने के बाद उसको डाला जाता है कढ़ाई में। कढ़ाई में उसको तैयार करने के बाद फिर उसको गंड में डाला जाता है और पेड़ियाँ बना के ये फाइनल हो जाता है जी, फाइनल मराहल में पहुंच जाता है जी। जी बिल्कुल, आपने गुड़ बनाने वाले कारीगर की बात सुनी कि गुड़ को किस मराहल से गुजार कर वो दुकान पर बेचते हैं, जहाँ पर वो रेडी की जीनत बनता है, जहाँ पर गिराक उस पर। बहुत शुक्रिया मलिक बहराम अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर खानेवाल में DC ऑफिस में तमाम एपका मुलाजमीन तंजीमें अपने मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तमाम एपका मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 15वें रोज़ में दाखिल हो गया। तमाम एपका मुलाजमीन का कहना है कि हमारे मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल। जी अदनान रसूल, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी ऑफिस खानेवाल में, जहाँ पर आपका मुलाजमिन सरापा एहतजाज बने। उनका जो एहतजाज है वो 15वें रोज़ में दाखिल हो गया। उन्होंने कर्म छोड़ हड़ताल की हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़िले सदर आपका, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं जी, आप बताएंगे आज के एहतजाज के बारे में। जैसा कि आप लोग शाहिद हैं इस चीज़ के कि हमारा जो एहतजाज है वो आज 15वें रोज़ में दाखिल है। ये तो वो एहतजाज है जो हम कंटिन्यूसली अब कर रहे हैं, जिसमें हमने कलम छोड़ हड़ताल की है, हमारी तालाबंदियां हैं, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट बंद हैं। ये लेकिन हमारा वो एहतजाज जो चला आ रहा है, दिहाइयों से चला आ रहा है, हम हुकूमतों को बावर करवाते आए हैं कि आप जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं वो ज़्यादतियाँ ना की जाए मुलाजमीन के साथ। जैसा कि हम पिछली हुकूमतों का रोना रोते थे, लेकिन पिछली हुकूमतें न्याई साहब आपसे बहुत बेहतर थी, बदरजहा बेहतर थी आपसे वो हुकूमतें, जिन्होंने किसी ने हमारे साथ 50% का हमें एडहाक रिलीफ दिया, किसी ने हमारे साथ हमारे स्केल अपग्रेड कर दिए। जिन्हें हम जालिम कहते थे उन्होंने हमारे स्केल अपग्रेड कर दिए। और आपकी हुकूमत वो हुकूमत है जिसने मुलाजिम को आज मजबूर कर दिया, मुलाजमीन को, कि वो सारे कलम छोड़ के सरापा एहतजाज हो जाएं, चाहे वो 6 अक्टूबर के धरने हो या आज इकट्ठा होना हो। आपने सबको, आपके जुल्म ने आज सारी तंजीमों को इकट्ठा कर दिया है। सारी तंजीमें आज एक प्लेटफॉर्म में हैं, चाहे वो अगीगा की शक्ल में हो, एप्का की शक्ल में हो, और ये मुतालबात अपने लेके रहेंगे। अब हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, 10 तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए। आपने जो हमारे आपने जो वादा किया था कि इंक्रीमेंट मिनी बजट देंगे 1 जनवरी को, वो ना दिया आपने। उसके बाद जो हमारे दीगर मुतालबात हैं, जिसमें हमारी जो पे की स्टेजेस हैं, या हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को परमानेंट करना है, हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 14 साल से जो हमारे साथी चले आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उन्हें परमानेंट किया जाना है, या क्लास 4 को 5वां स्केल दिया जाना है, या हमारा सबसे बड़ा मुतालबा जो आपने महंगाई का होशरुबा इजाफा कर रखा है, अगर आपने इस चीज़ों को कंपनसेट ना किया, हमारे मुतालबात पूरे ना किए, तो न्याई साहब हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और मुतालबात पूरे करवा के जाएंगे। जी, जैसा कि आपने आपके सदर की बात सुनकर कहा, जब तक हमारे मुतालबात ना पूरे, हम इस्लामाबाद अपने मुतालबात पूरे करवा के। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़िले रहनुमा एप्का बुजुर्ग रहनुमा, इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी इस बेचैनी को महसूस किया और हमें कवरेज देने के लिए तशरीफ़ लाए। इमरान खान, हकीकत तो यही है, बहुत दुआएं मांग के आपको लिया था, लेकिन अब वो दुआएं हमारे बददुआएं नज़र आ रही हैं कि हमने कौम के लिए वो बददुआएं की दी थी आपकी सूरत में। आप अभी भी वक्त है कि आप हमारे साथ, जो आपने हमारे साथ वादे किए थे, जो आपने अपोजिशन में बैठ के वादे किया करते थे, कुछ एक वादा को तो पूरा कर दो। आप जिस वक्त वो बातें करते थे, जिस वक्त आप आए थे, तो तेल का रेट क्या था, 60 रुपए, आज 111 रुपए है। महंगाई का मतलब डबल खर्चे हैं। मेरी तनख्वाह जितनी आज आपके आने से पहले थी उतनी ही आज है, लेकिन मेरे खर्चे डबल हो चुके हैं। हर मुलाजिम के डबल खर्चे हो चुके हैं। ये जो हर माह कर्जा दर कर्जा मुलाजमों के सर चढ़ता जा रहा है, कहाँ से उतारेंगे। हमने तो कुछ मुलाजमों ने सोचा था कि रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट के बाद उतार देंगे। जालिम, आपने रिटायरमेंट पे भी छुरा तैयार कर लिया है। इंशाल्लाह हम आपको ये वार नहीं करने देंगे। आपको वहीं रीमा खान के पास जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये मुल्क हमने बनाया था और हम ही इस मुल्क को बचाएंगे, और अपने गरीब मुलाजमीन के हकूक़ के लिए जिस कदर भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो खुदारा मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 फरवरी में अभी कुछ देर है, 10 फरवरी से हमारे मुतालबात पूरे करें। 1 जनवरी 2020 वाला बजट वादा के मुताबिक आप हमारे नोटिफिकेशन करें। इंशाल्लाह हमें इस्लामाबाद भी ना जाना पड़े। अगर हम इस्लामाबाद आए तो आपको हमारी एक एक बात माननी पड़ेगी। इंशाल्लाह वो हालात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आप IMF के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। ये आपके जो करीबी साथी जो IMF के करिंदे हैं, वो हमें कत्लो गारत करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इस मकसद में पूरा नहीं होंगे। IMF का एजेंडा नामंजूर, IMF का एजेंडा नामंजूर। हमें अपने हकूक़ चाहिए, हमें अपने वक्त 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो हम आपसे लेकर आए। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुन का यही कहना था कि हमने इमरान खान आपको दुआएं मांग के लिए, लेकिन आप कौम के लिए बददुआएं साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि हम इस्लामाबाद आएंगे 10 फरवरी को, इंशाल्लाह हम अपना हक। एप्का मुलाजमीन का कहना है कि हमें अपने मुतालबात जरूर चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ अदनान रसूल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मंगला मिंठार शहर में मेन पुल टूट फूट का शिकार हो चुका है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। आमद और रफ्त में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बता रहे हैं मिंठार से मोहम्मद मुनीर। जी मोहम्मद मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला मंठार के मेन पुल पर। यह पुल 100 से जायद चकूक को मिलाने वाली वाहद
गुजरगाह है। यहाँ पे ये पुल जो है इसके पुश्ते कमजोर हो चुके हैं और इस पुल के दरमियान में गड़ा भी बन चुका है, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े साना यहाँ पे पेश आ सकता है। जबकि गन्ने की लोडेड ट्राली जब यहाँ से गुजरती हैं तो उनकी धमक करीबी दुकानों में सुनाई दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल ये पुल बहुत ख़तरनाक जगह पे है और जब भी ये ट्रैली गन्ने की ट्रैली आती है, जब कोई मसला बचता है, यहाँ पे मोटरसाइकिल भी नहरों में गिरे हैं, एक दफ़ा कार भी गिरी है और मुकामी लोगों ने उनको निकाला है। ठीक है ना, फुल फोर इस पुल को बनाया जाए और इस पे टोए खड्डे पड़ रहे हैं। अभी बात कोई भी हुकूमत एक्शन नहीं ले रही इसके बारे में। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जल्द अज जल्द और फिल फोर इस पुल की नो तामीर करवाई जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पुल को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि नारोवाल से खबर है कि नारोवाल में मुबाश नौजवान की 5 साला बच्चे से जिनसी ज्यादती से बच्चे की हालत तशवीशनाक होने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया। बच्चे से जिनसी ज्यादती का वाक़या नारोवाल के नवाही गांव महस बोबे वाली में पेश आया। 5 साला अब्दुल हादी घर से बाहर करीबी दुकान पर गया था कि उबाश नौजवान बच्चे को वरगला कर करीबी हवेली में ले गया और जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला, जिससे बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई है। बच्चे की हालत तशवीशनाक होने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया और अहले इलाका ने बच्चे को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबर कबीरवाला से है कि फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम तहसील कबीरवाला के अहदेदारान की तकरीब हलबरदारी का एहतमाम तहसील कबीरवाला के तमाम प्राइवेट और पेप स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के अलावा फेडरेशन के मरकजी कायदीन ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक निजी तलीमी इदारे दी स्कॉलर स्कूल में, जहाँ पे जो है फेडरेशन ऑफ स्कूल्स जो पंजाब के रजिस्टर्ड हैं उनके हवाले से यहाँ एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें हलफ बरदारी की तकरीब भी हुई है। तो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं यहाँ के जो अरशद मुनीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी, उनसे जानते हैं कि वो आज की तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं। चौधरी अरशद महमूद, मरकजी जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल पंजाब। हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा ये है कि हमारे जो सिंगल नेशनल करिकुलम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, हमारी पहले टीचर ट्रेनिंग करवाई जाए, मॉड्यूल हमारे साथ डिस्कस किया जाए और इसके साथ साथ हमारे कमर्शियल जो टैरिफ बिजली का हमें इम्पोज कर दिया गया है उसको वापस लिया जाए, कमर्शलाइजेशन हमारी वापस ली जाए, हमें वेलफेयर का दर्जा दिया जाए और हमें वेलफेयर के हुकूक दिए जाएँ। जितनी कमर्शलाइजेशन हमारे ऊपर इम्पोज की गई है वो और नया जो तालीमी स्ट्रक्चर है उसके तमाम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए और फिर अगले साल से इसको लॉन्च किया जाए। पहले ट्रेनिंग करवाई जाए और हमारे तमाम जो चीज़ें हैं उनको पहले डिस्कस किया जाए। जैसा कि आपने जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्राइवेट स्कूल और बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सर मोहम्मद अली वसीम का सर्कल मियां चन्नू का अचानक दौरा। एसडीपी ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसडीपीओ राव तारिक परवेज, इंस्पेक्टर महर सईद अहमद, इंचार्ज गुल मोहम्मद समेत एसएचओज की शिरकत। डीपीओ ने मीटिंग के आगाज पर सर्कल सतह पर क्राइम चार्ट का जायजा लिया। डीपीओ की पुलिस अफसरान को मेहनत और दयानतदारी से क्राइम पर फोकस करने की हिदायत। मुनशियात डीलरों, इश्तिहारी मुजरिमान, नाजायज असलहा माफिया और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की। इंसदाद जराइम के पेश नज़र मुस्बत हिकमत अमली तरतीब दी। नीज़ संगीन मुकदमात की तफ्तीश को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तहसील कोर्ट चौबारा में एडिशनल एंड सेशन जज खालिद इसहाक ने पहली बार तहसील चौबारा में परमिट सेट का चार्ज संभाल लिया है। तहसील चौबारा में पहली बार एडिशनल एंड सेशन जज ने परमिट सेट कंफर्म होने पर एडिशनल एंड सेशन जज खालिद इसहाक ने चार्ज संभाल लिया है। उनका तहसील बार एसोसिएशन चौबारा के सदर चौधरी एजाज अहमद सिंधु, साबिक जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद कासिम अवान, दीगर वकला ने उनका जोशो जज्बे के साथ इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर चौधरी एजाज अहमद सिंधु का कहना था कि हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार कासिम खान के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने एडिशन
जज की सीट मुस्तकिल ऑर्डर किए। पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से माल मसरूका 5 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने सराय आलमगीर के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम और वारदातों में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी मुदस्सर इकबाल की ज़ेर निगरानी SHO थाना सिटी सराय आलमगीर एजाज अहमद को खुसूसी टास्क दे रखा था। डीपीओ गुजरात ने अफसरान को हिदायत की कि तमाम वसाइल बरूए कार लाकर मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके शहरियों के मोटरसाइकिल बरामद करके उनको वापस दिए जाएं। मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली कलां के शहरी साफ पानी पीने से महरूम। कई साल पहले साफ पानी के हसूल के लिए ट्यूबवेल लगाया गया था जो आज तक ना चल सका। ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर और पानी वाली टैंकी के पाइप भी चोरी हो चुके हैं। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे तारिक मकबूल की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद के नवाई गांव सरहाली कलां के शहरी साफ पानी पीने से महरूम। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों को साफ पानी के असूल के लिए 1 किलोमीटर दूर नहर के किनारे लगे नलकों से पानी पीना पड़ता है। साफ पानी के असूल के लिए लगाया गया ट्यूबवेल अरसा दराज से बंद पड़ा है। शहरियों का कहना है बंद हुई 2 साल चली है, उस तो बाद ट्रांसफार्मर भी चोरी हो गया है। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਡੰਗਰ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਪਏ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਓ ਕਸੂਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਇਤਜਾਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। साढ़े बहुत ज्यादा पेट दी मर्द दी बीमारियां। कैमरामैन टीम के साथ तारिक मकबूल टीवी टुडे। सरकारी जमीनों पर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार करवाने पर महकमा माल के मुलाजमीन पर दर्जन से ज्यादा गुंडा अनासिर का हमला। चुंगिया के नवाही गांव पिंडी जट्टा में 296 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार करवाने के दौरान कब्जा ग्रुप के 16 से ज्यादा मुसल्ला अफराद ने हमला करके हल्का पटवारी और महकमा माल के अफसर सरदार तारिक को जख्मी कर दिया। इतला मिलती है असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर एलीट फोर्स और पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचे। एक मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तहसील कबीरवाला में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आलम शेर ने अताइयों के 2 मजीद क्लिनिक्स सील कर दिए। कबीरवाला के नवाही इलाके अड्डा 25 पुल पर अताई डॉक्टर सादा लो शहरियों की जिंदगियों से खेल रहा था कि महकमा सेहत की चेकिंग के वक्त अस्पताल में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी मौजूद न था। इसी तरह एक और कार्रवाई के दौरान दरखाना में एलोपैथी अद्वियात पकड़ी गई जिसकी दुकान को सील कर दिया गया। महकमा सेहत ने दोनों केसेस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भिजवा दिए। डिप्टी कमिश्नर ने क्रैकडाउन का सिलसिला बिला तफरीक रोजाना की बुनियाद पर जारी रखने की हिदायत कर दी। लोधरा में बिजली सप्लाई कंपनियों की निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के अहदेदारान मुलाजमीन का एक्सीएन ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती इदारे पॉलिसियां बेहतर बनाने की बजाय इदारों की निजकारी करके मजदूरों का इस्तेसाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो नामंसूर है। लोधरा में बिजली सप्लाई कंपनी की निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन ने एहतजाज किया जिसमें तमाम मुलाजमीन ने दफातर और फील्ड वर्क बंद कर दिया। एहतजाज ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के डिवीजनल सदर राव शकील और चेयरमैन अल्लाह दिता की निगरानी में किया गया। उनका कहना था कि जिन इदारों की माजी में निजकारी की गई वो इदारे तबाह हाल हो चुके हैं। वापटा इस वक्त मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है और हुक्मरान इसको तबाह करना चाहते हैं। मुल्क में पहले ही बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी है।
वापटा की जानब से तालीमी इदारों के कनेक्शन का टैरिफ तब्दील करके लाखों के बकाया जात मौजूदा बिल में शामिल करने पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदारों के एहतजाजी मुजाहरा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम नूर कादरी की इस रिपोर्ट में। निजी तालीमी अदारों का वापडा टैरिफ तब्दील किए जाने और भारी बकाया जात को मौजूदा बिल बिजली में शामिल करने पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के साथ हुकूमती पॉलिसी के नाम पर इस नारवा सलूक के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। प्राइवेट स्कूल्स मालकान का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान का विजन था कि वो मुल्क से महंगाई खत्म करेंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स की पॉलिसी बनाते वक्त हमेशा पाकिस्तान के महंगे तरीन प्राइवेट तालीमी अदारों जिनकी फीस और तुलबा की तादाद हजारों में होती है को जहन में रखकर पॉलिसी बनाती है, और ये बात हमेशा हुकूमत भूल जाती है कि पाकिस्तान में ऐसे तालीमी अदारों की कसीर तादाद मौजूद है जो सिर्फ चंद 100 रुपए के विज तुलबा की मुख्तसर तादाद के साथ हुकूमत का बोझ बांट रहे होते हैं। कोरोना से मुतासरा बदतरीन हालात में ऐसी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से तालीमी अदारे बंद होने के करीब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स को रिलीफ दे, ना कि उनको बंद करने के लिए ऐसी पॉलिसियां मुरतब दे। हुकूमत तालीमी अदारों के टैरिफ में तब्दीली और जायद बिलों का इजाफा। सरगोदा जिला भर में कब्जा माफिया बेलगाम मयाना घूमे बासर अफराद मिली भगत से गरीब खानदान की जिंदगी की जमा पूंजी से खरीदी जमीन हथियाने के लिए मुतहरिक हो गए। असले से लैस अफराद का घर पर दावा, तोड़ फोड़, गरीब खानदान को जान से मारने की कोशिश। सरगोदा की तहसील कट्टू मोमिन के नवाही इलाका में आना खूमे बासर और गुंडा अनासर का राज कायम हो गया। गरीब फैमिली के घर पर सिकंदर, अकरम और सैफ नामी शख्स का दीगर साथियों समेत असले से लैस होकर घर पर धावा, तोड़ फोड़, 70 साल बुजुर्ग शख्स का बाजू तोड़ दिया। खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में अड्डा दीनपुर के मकाम पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब वाक़ई आबादी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहील रियाज। खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में अड्डा दीनपुर के मकाम पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया। अब्दुल हकीम अड्डा शाख मदीना के रिहायशी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होकर रह गए। इंतजामिया को बारहा बार आगाह करने के बावजूद भी सीवरेज का हाल ताहाल दुरुस्त ना हो सका। हकीम अड्डा शाख मदीना के रिहायशियों की लाखों की लागत से बनाए हुए घर सीवरेज का निज़ाम बदतर होने के बायस नकारा होने लगे। नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त ना होने के बायस करोड़ों की लागत से बनाया गया मेन मुल्तान रोड भी शदीद मुतासिर हो चुका है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात का होना मामूल बन चुका है। अब्दुल हकीम अड्डा शाख मदीना के मकाम पर सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त ना होने के बायस वहाँ के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। साढ़े महल्ले दे विच बहुत ज़्यादा सीवरेज का निज़ाम खराब होया होया जी, ते इस दे लई असी बार बार जो ना बाला काम नूं कहीदा, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है साड़ी। देख लो साढ़े मकान जड़े ने वो गिर रहे ने, उन्हां दे नाल सारी सेम चली गई है, और जिस दी वजह तो असी बहुत परेशान हाँ। साढ़े गुजरन का रस्ता भी बंद होया होया, जिस दी वजह तो असी ना नमाज पढ़न जा सकते हैं, मस्जिद तक भी साड़ी जड़ी है ना जाना मुश्किल होया होया है। पूरे हाल महल्ला चंदा इकट्ठा करके इथों मिट्टी सटवाने 2500 साड़ी डेली दी मिट्टी आंदी है। साडी इसे रास्ते दी वजह तो मिट्टी दी चंदे दी वजह तो साडी डेली लड़ाई होंदी है भाईजान। साडी कोई MNA नहीं सुनदा पिया, कोई MPA नहीं सुनदा पिया, कोई चेयरमैन नहीं सुनदा पिया, कोई वाइस चेयरमैन नहीं सुनदा पिया, ना साडी कोई यूनियन सुन रही, ना कोई कमेटी सुन रही, ना कोई इमरान खान सुन रहा, ना कोई दुआ त्रिया सुन रहा। असी अपनी मदद आप कर रहे हैं भाई। कैमरामैन मुनीर अहमद। अब्दुल हकीम अनम कत्ल केस में पुलिस ने मुआमा बना दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी और इकबाल जुर्म के बावजूद लाश ताहाल न मिल सकी, जबकि बाकी नामजद मुलजिम भी ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। अब्दुल हकीम बस्ती शाह करीम की रिहायशी अनम, जिसकी शादी तकरीबन 4 साल कबल दारुल मुहर्रम के आमिर शहजाद के साथ हुई। इस दौरान मुलजिम आमिर शहजाद का रवैया मकतूला अनम के साथ जालिमाना रहा। बात बात पर झगड़ा और तशद्दुद से तंग आकर मकतूला अनम अपने मेके अब्दुल हकीम आ गई और अदालत में तनसीह के निकाह का दावा कर दिया, जिसका फैसला सिविल कोर्ट खानेवाल ने मुलजिम आमिर शहजाद के खिलाफ कर दिया। जिसकी रंजिश पर मुलजिमान आमिर शहजाद मोहम्मद साजिद ने मकतूला अनम को घर में तन्हा पाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ज़बरदस्ती उठाकर
اپنے ساتھ لے گئے۔ مقتولہ انم کی والدہ کی اطلاع پر پولیس تھانہ عبدالحکیم نے ملزم عامر شہزاد اور دیگر کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو کی ہدایت پر غیر قانونی منی پیٹرول پمپوں کے خلاف آپریشن جاری۔ آپریشن کے دوران تحصیل 18 ہزاری کے علاقے میں متعدد پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے ہیں۔ سول ڈیفنس آفیسر اسد سلیمان نے چھاپہ مار ٹیم کے ہمراہ پیٹرول پمپ سیل کیے۔ ضلع بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا پیٹرول پمپ مالکان ایسے غیر قانونی فعل سے باز رہیں۔ غیر قانونی منی پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف قانونی دائرہ کار تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کی تھانہ سٹی جلال پور پیروالا میں کھلی کچہری، عوام کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن عامر نیازی کی تھانہ سٹی جلال پور پیروالا میں کھلی کچہری، عوام کی بڑی تعداد کھلی کچہری میں شریک ہوئی اور اپنے مسائل بیان کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل محمد ارشاد جویا سمیت دونوں تھانوں کے ایس ایچ اوز ارشد محمود بھٹی، رانا صابر حسین بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی نے تمام سائلین کے مسائل اور موقع پر یہ احکامات جاری کیے۔ خطاب کے دوران ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں بھی لوگ تھانہ کلچر سے ڈرتے ہیں، میری کوشش ہے کہ عوام کی معاون اور مددگار بنائیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں اے سی لاریب اسلم ان ایکشن، کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، مارکیٹ میں 15 اور روڈ 1 پر دکان سیل، متعدد دکانداروں کو وارننگ جاری۔ کرونا وائرس کی بڑھتی لہر کے پیش نظر خانقاہ ڈوگرہ میں اے سی لاریب اسلم کی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ یونس مارکیٹ میں گارمنٹس، منیاری اور دیگر سے زیادہ دکانوں 20 کو، جبکہ اسوا روڈ پر ایک دکان کو سیل کر دیا گیا، جبکہ متعدد دکانوں کو وارننگ بھی جاری کی ہے۔ اس موقع پر اے سی لاریب کا کہنا تھا کہ کرونا ایس او پیز پر عمل ہر دکاندار کی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے شہر کنری میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں مفت ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں خالد محمود۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع عمرکوٹ کی جانب سے آج سمارو تعلقہ میں مستحق اور معذور افراد میں مفت ویل چیئرز تقسیم کرنے کی ایک تقریب ٹاؤن کمیٹی ہال سمارو میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع عمرکوٹ کے چیئرمین پیر ولی اللہ جان سرہندی تھے۔ اس موقع پر زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے چیئرمین پیر ولی اللہ جان سرہندی کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ مذہبی رہنما جیئں تا اج الخدمت فاؤنڈیشن کے طرفاں مزدورن ۽ اپاہجن لائے 8 ویل چیئر ہتے ٹاؤن کمیٹی سامارو میں ورایا آئین، مزدورن کے ڏنا آئین۔ اهو هڪڙو سير نیک کم آهي ۽ ان میں الخدمت فاؤنڈیشن پیش آهي۔ جيئن ته اهو بि آئون ٻڌائيندو هلا ته برسات متاثرن لائے الخدمت فاؤنڈیشن ٹینٹ ڏنا، خوراک ڏني ۽ ہر طرح سان انہن سان ہیلپ کئی، جنهن لاءِ هو قابل تحسین آهن۔ یہ انسانیتی خدمت آهي، وڏو اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع عمرکوٹ کے امیر خلیل احمد کھوکھر، نائب امیر نیاز درانی، تاج محمد کھوکھر اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار بھی موجود تھے۔ تقریب کے آخر میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 8 معذور افراد میں مفت ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ خالد محمود، ٹی وی ٹوڈے نیوز اسٹوڈیو سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔